morning, friends. Once again, we welcome you all in our talk show. Our today's guest is Dr. Udat Patil. He is professor at JNU. Before that, he served as the program director Niti Aayog. He also worked as OLD2CIF, Government of India, member IPR think tank, member of NCOTBATC, head IP at Cadila, and deputy manager IPM at DRL. He had MSc, PhD, LLB, PGDPL, ECJP, Executive GMP from IIM Lucknow. So we welcome you, sir, in our talk show. Dr. Rajesh Kodhari, President, Taifa University, Jaipur. Sir, I request you to formally welcome Dr. Udat Patil. It's my privilege. It's my unbound happiness. It's my fortune that I welcome Professor Unnat P. Pandit, illustrious man with illustrious career and importantly, illustrious expectations ahead. Sir, we all meet for a purpose. And today's purpose is well defined. How to lead life in COVID-19. This is what I've been told. That means COVID is one example. Bigger perspective is how to lead the life in uncertainty. COVID was not expected of. No, nobody would like to welcome such kind of evil pandemic at any cost. It has come, going to stay. But the life cannot be pulled back. Life has also to go up and up and up. Therefore, sir, with your illustrious eloquence, we like to understand how one can lead a life when things are not in favoring us. Things are not favorable. The ecosystem is not very conducive. Economy per se has taken a back seat. Issue is not of breathing in and breathing out. Issue is A, survival, B, growth, and C, while doing this, are we able to spread the message of humanity with happiness and happiness with humanity? Without taking much of time, we are keen to listen Professor Pandit. Sir, we are fortunate to have with you as our speaker of the day. And I must compliment my colleague, Dr. Arun Saniji, for having organized such a beautiful discourse. In normal course, it was not possible to take time out of you, but today, because of thanks COVID and thanks this lockdown, we locked down in terms of mobility, but our hope, expectation, desire, vision, ambitions are not locked down. Thus, they have looked up. I think a right human being is one who doesn't talk much about the crisis, simply focus at solutions and move on. Sir, once again, I welcome to Iqra University, Jaipur, which is one of the fast and resounding university. It's our privilege and pleasure to welcome you, sir. Professor Pandit, sir. Thank you. I hope the live comments are also active. So this is the interactive session. So Right, of course, Dr. Rajesh Kodhari ji and Arun ji is visible to me, but would like to have your interaction live with me. And that's what this webinar will make it a success. If True. it would have been a normal course of interaction in a small gathering or in the podium, I can see the faces of the audience. But this is something which this COVID-19 has positively taught us, that in place of nobody, you can still deliver the talk and thousands of people can hear you. And sitting in my house, I can reach out to so many people. And this is something which has taught each academician, each students, that we can still be in the academic environment, even though we are sitting in our home. And this COVID-19 has really given us this opportunity to get connected with each other. And how to lead your life in COVID-19 era. I believe
that something we need to get the knowledge. Whatsoever the knowledge which we are going to gain it, it's going to be useful. So that's why through such kind of a webinar, the knowledge sharing sessions are getting conducted. And in order to lead the life, it is important for all of us to really decide the pathway where we want to, what we want to achieve in the life during the COVID-19 era. And post-COVID-19 era is going to set a new normal, where, according to me, technology and innovation can give us the winning lip in India, because entire world is watching India now. The knowledge economy in India is really shaping up well. And it may not be a matter of time for during this 3 months or 4 months, but what all foundation we have. If you may have observed, then during COVID-19 phase, so many startups, researchers are innovating, and they are putting their best efforts in order to utilize the knowledge. The knowledge management has now become a people-centric, process-driven, technology intervening. And we are achieving something which are not routine in the practice. Like a ventilator which was costing roughly around 20 to 35 lakhs, which has now reduced to something in the range of 1 to 1.5 lakh. See, more than 10x or 20x cost reduction. It would not have possible if we have not faced this challenge. And this shows our youth, students has the power of utilizing the technology effectively. Everything was available. Nothing new technology which got invented during this phase. Everybody has utilized the existing knowledge which is there in the form of information or literature. But this existing knowledge they have utilized for designing the improved product, which is cost effective, which can really practice and fulfill the need of today's era. And that's what is going to lead us when we compare ourselves with the other countries. Our Honorable PM has also given us a message of Atmanirbhar Bharat. And in this Atmanirbhar Bharat, he has specifically emphasized on 5 pillars, which are considered to be as a Pancharatna. In Pancharatna में ज़्यादातर तो इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी, डिमांड की बात होती है, लेकिन इन पंचरत्न में अगर हमें आगे बढ़ना है तो 135 करोड़ की पॉपुलेशन में हम कितना डेटा जनरेट करते हैं, ये डेटा सारा ही रॉ फॉर्म में है. सॉरी, शुरू में मैंने अंग्रेजी में शुरू किया था, बाद में कुछ मैसेजेस देखे और बात भी हुई कि नहीं ये हिंदी में रहेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो मैं अपनी बात हिंदी में भी रखना चाहूंगा. प्रोफेसर पंडित, भाषा सिर्फ एक संप्रेषण का माध्यम है, आप जिसमें कंफर्टेबल हैं अपनी बात कहिए सर. वी आर कैन टू लिसन टू यू सर. मिक्स लैंग्वेज. सो रॉ डेटा जो है, रॉ डेटा को कैसे हम यूजफुल और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में ट्रांसलेट कर सकते हैं. अगर ये करते हैं तो एक कंटेक्चुअल नॉलेज डेवलप होता है, जिसका हम प्रयोग समाज में विकास के लिए कई ऐसी समस्याओं के समाधान खोजने के लिए कर सकते हैं. और ऐसे 5 पिलर पर अगर हमें काम करना है तो टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के सहारे कैसे हम नए अनुसंधान को स्वरूप दें, कैसे हम नए नवाचार को समाज के लिए तैयार करें, और वो नवाचार कैसा हो,
आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट, कॉस्ट इफेक्टिव हो, सिटीजन सेंट्रिक हो और रिलेवेंट टू दी पब्लिक्स नीड, कॉमन पब्लिक्स एक्चुअल नीड वेयर दे आर फेसिंग दी प्रॉब्लम। और ये करने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना होगा। एंड इट्स अ टाइम फॉर स्ट्रेंथनिंग दी इनोवेशन इकोसिस्टम, टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम। अगर हम लीड करना चाहते हैं कोविड-19 एरा में, तो हमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में कहीं ना कहीं कुछ उम्दा प्रदान करना होगा। टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कई ऐसे सामाजिक अनुसंधान और सामाजिक नवाचार भी तैयार कर सकते हैं। सोशल इनोवेशन, ऐसे सोशल इनोवेशन की आने वाले समय में बहुत ही आवश्यकता होने वाली है। तो आप तकनीकी क्षेत्र के स्टूडेंट हैं या यूथ हैं नहीं है, ये ज्यादा महत्व नहीं रखता है। ज्यादा महत्व ये रखता है कि आप इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। If you are using the technology which is in relevance to the need, then you can really contribute in a exceptionally well for the society. टेक्नोलॉजी और इनोवेशन एक इम्पोर्टेंट अनेबलर भी है, जो कि आज के क्षेत्र में हमें एक पावरफुल रिजिम के रूप में स्थापित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और कहीं ना कहीं वैश्विक परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें, तो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जिसके पास बढ़िया टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, वहां मतलब पावर सेंटर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहां पर है। यूएसए है, जापान है, ऐसे जर्मनी है, चाइना में भी कई ऐसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में काम हो रहा है। तो कहीं ना कहीं वैश्विक रूप से वहां एक नवाचार और अनुसंधान का पावर सेंटर तैयार हुआ है। भारत आने वाले समय में कैसे इन पावर सेंटर में स्थापित हो सके, और ये अगर हमें करना है तो हमें टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में लीड लेनी होगी। और ये लीड लेकर हम आने वाले समय में पोस्ट कोविड-19 एरा में हम कहीं ना कहीं कुछ देश के लिए उम्दा प्रदान कर सकते हैं। एंड इट्स अ टाइम फॉर बिल्डिंग द ओपन इनोवेशन एज वेल। ओपन इनोवेशन के जरिए हर व्यक्ति इनोवेशन को एक प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप के रूप में स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं इमर्जिंग इकोनॉमी के लिए कुछ ऐसे अनुसंधान करेंगे, साथ में नवाचार करेंगे। और उद्देश्य ये रहना चाहिए कि ये नवाचार, ये टेक्नोलॉजी को हर देश के हर एक माइल तक, हर गांव में कैसे पहुंचाए। कहीं ये पूरी जर्नी में फेलियर्स भी आते हैं। इंक्यूबेशन सेंटर, प्री इंक्यूबेशन सेंटर की यही एक भूमिका रहती है कि वो आने वाली समस्याओं के अंदर कैसे लीप फ्रॉग जंप करके वी कैन रियली कन्वर्ट द फेलियर इनटू द सक्सेस। एंड ये अगर हमें करना है तो दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण। एक तो व्यक्तिगत रूप से हम कैसे अपने आप को तैयार करें। सो वी शुड इम्पार्ट अवर स्किल्स फॉर टुमारोज इनोवेशन और टुमारोज एरा ऑफ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। और दूसरा है, अगर हम स्टार्टअप या इंक्यूबेशन या प्री इंक्यूबेशन करके कहीं ना कहीं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, या ऑलरेडी अभी हैं स्टार्टअप फाउंडर्स हैं, या हम एमएसएमई, एसएमई अभी या कहीं इससे जुड़े हुए हैं, तो क्या करना चाहिए। तो पहले केस में हमारे स्किल इंप्रूवमेंट में we need to be a omniscience and learn to apply in the development limb। जो भी ज्ञान जहां से भी मिल रहा है उसे कैसे हम अपने आप में ग्रहण करें, और इस ज्ञान का उपयोग हम डेवलपमेंट के क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम के लिए हम ग्रास रूट इनोवेशन या ग्रास रूट बॉटलनेक ढूंढे हैं, उसके ऊपर काम करते हुए हम कैसे अपनी स्किल को निखार दें और उस स्किल और उस ज्ञान का प्रयोग करके बढ़िया सा इनोवेटिव सॉल्यूशन तैयार करें।
इसके लिए एक और चीज महत्वपूर्ण है, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल। एक माइंडसेट होना चाहिए, जो हम सोच रहे हैं उसे कैसे धरातल पर स्थापित कर पाएंगे। उसे स्थापित करना है तो हमें क्या प्लानिंग करनी है, क्या ज्ञान ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, क्या नया हमें ढूंढना है। और नया ढूंढने हैं तो हमें लिटरेचर, रिपोर्ट, जर्नल्स, रेफरेंस, पेटेंट रेफरेंसेस किस तरह से हमें उपयोगी हो सकते हैं। और जब भी हम ये नया नवाचार करने का कुछ सोच रहे हैं तो उसे कमर्शियलाइज करने हैं तो हमें एक स्ट्रेटेजिकल इनिशिएटिव लेना बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी स्टार्टअप, किसी भी एंटरप्राइज को अगर सक्सेसफुली सस्टेन करना है तो बॉटम लाइन पर फोकस करना बहुत जरूरी है, एंड दैट विल ड्राइव थ्रू द डेटा एंड फैक्ट। जो हमारे पास डेटा है वो डेटा और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के दम पर हम अपने बिजनेस को, स्टार्टअप को सस्टेन कर सकते हैं। तो जिन व्यक्ति अलग अलग उद्योगों से भी संबंधित हैं या उनके पारिवारिक व्यवसाय है, तो वहां ये चीज आपको भी ध्यान में रखनी चाहिए। भले ही आप छात्र जीवन में हैं, लेकिन छात्र जीवन में भी कैसे आप अपने पारिवारिक व्यवसाय को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड एथिकल इंटेलिजेंस विच इज इम्पोर्टेंट। हर एक व्यक्ति को एथिकल मोड में काम करना चाहिए, और ये स्किल्स आज हमें इम्पोर्ट करनी चाहिए ताकि आने वाले कल के इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के लिए हम अपने आप को तैयार कर सकें। जिनका पारिवारिक व्यवसाय है या फिर जो ऐसे युवा हैं जो पढ़ाई के बाद तुरंत ही अपना वेंचर शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए अभी जो 3 बिंदु मैं बताने वाला हूं वो महत्वपूर्ण है। वी नीड टू रीच आउट टू अ न्यू पार्टनर्स। हमें नए ऐसे पार्टनर्स के साथ पहुंचना चाहिए। अगर हमारा ज्ञान और उनका व्यवसाय साथ मिल जाए तो क्या कॉम्बिनेशन, विन विन कॉम्बिनेशन बन रहा है क्या? अगर उत्तर हाँ है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए। एंड डेफिनेटली आज हमारे पास शायद एक्सेप्शनली एस्टैब्लिश इनोवेशन या टेक्नोलॉजी न हो, लेकिन जिनके पास वो है उनके साथ कैसे हम जुड़ सकते हैं, पावर शेयरिंग कैसे हो सकता है। एंड कहीं ना कहीं हमें बैलेंस लाना होगा हमारे ज्ञान में और इंटरनल या एक्सटर्नल इनोवेशन विच इज अवेलेबल। इन दोनों का संगम ही आने वाले समय में हमें कहीं ना कहीं नई ऊंचाइयों तक ले जाने की ऊर्जा देगा। और इसके लिए हमारा इंटरनल स्ट्रेंथ, पावर बहुत ही यूजफुल और गेम चेंजिंग स्ट्रेटेजी के रूप में उभर कर आएगा। ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज आज के दौरान ही है, हमेशा से ही स्टार्टअप के लिए फंडिंग फैच करना एक चैलेंजिंग मौका रहा है। और मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसा मानता हूं कि स्टार्टअप या एंटरप्राइजेस आने वाले समय में पूरे वैश्विक व्यापार के विनिमय को बदल देंगे और कुछ नया ट्रेंड एस्टैब्लिश करेंगे। और ये होना, मैं ऐसा मानता हूं, शुरू हो चुका है। मेरे पास आज 1 मई से 15 मई तक का स्टार्टअप में जहां जहां फंडिंग हुआ है भारत के स्टार्टअप में, वो एक डेटा है। उसका स्टडी किया तो मुझे पता चला कि 24 ऐसे स्टार्टअप है। 1 मई से 15 मई के दौरान पूरा देश एक तीसरे लॉकडाउन में से गुजर रहा था। तो लॉकडाउन होते होते कम से कम 30-35 दिन हो चुके हैं, और इस 30-35 दिन के दौरान स्टार्टअप्स ने ना सिर्फ अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाया है, लेकिन एक्सटर्नल फंडिंग भी फैच किया है और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या एग्रीमेंट हो चुका है ये 24 स्टार्टअप का। और 24 स्टार्टअप ने कुल मिला के 101.6 मिलियन डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट भारत के लिए यहां लाए हैं। मुंबई बेस्ड हेल्थ केयर एग्रीगेटर है, या फिर विस्टा साइंस है, सिलिकॉन लैब्स है, बेंगलुरु बेस्ड सास स्टार्टअप है, या वोगो है, लॉग8 है। ये सारे ही स्टार्टअप
बहुत ही उम्दा सॉल्यूशन आज समाज के लिए दे रहे हैं, और वो ऐसे समय में दे रहे हैं जबकि पूरा समाज और व्यापारिक क्षेत्र एक चेंज का अनुभव कर रहा है। चेंज के साथ साथ पूरे मार्केट में, बिजनेस मार्केट हो, स्टार्टअप मार्केट हो, एमएसएमई सेक्टर हो, कॉर्पोरेट हो, कोई भी अछूता नहीं है। सारे ही लोग एक अनसर्टेनिटी के पीरियड में से पास ऑन हो रहे हैं। लेकिन इस अनसर्टेनिटी में भी ये 24 स्टार्टअप ने डिस्ट्रप्शन प्रस्तुत किया। ना सिर्फ डिस्ट्रप्शन प्रस्तुत किया, उनकी क्रिएटिविटी, इनोवेटिव स्किल और इन सारी चीजों का एक इमेजिनेशन जो उन्होंने पहले से काम करना शुरू किया था, जब दिसंबर के आसपास कोरोना वायरस के अस्तित्व को सबने जाना था, तब बिफोर टाइम उन्होंने काम करना शुरू किया। और इस पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन में वो कहीं ना कहीं बाकी स्टार्टअप, बाकी एंटरप्राइजेस से आगे निकल गए। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप की क्षमताओं को भी पहचाना। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जो कि हाईली पर्सनलाइज्ड है और एक्सपीरियंस्ड वे में इंप्लीमेंट हो रही है। दे हैव ट्राइड टू establish new approaches and they have scaled up the solutions which unimaginable way, जो हम सोच नहीं सकते वहां तक के स्केल अप कैसे हो सकता है, इसकी भूमिका उन्होंने तैयार की, उसकी स्ट्रेटेजी तैयार की और उसके एग्जीक्यूशन का काम शुरू किया। और कहीं ना कहीं ये करते वक्त उन्होंने अपने क्लाइंट, कस्टमर्स के साथ नियमित रूप से संवाद किया, जो कि आज के समय में महत्वपूर्ण है। अगर हम आगे लीप फ्रॉग जंप करके कहीं विकास की नई ऊंचाइयों को पाना चाहते हैं तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हम सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बन सकते हैं तो कहीं ना कहीं सर्वाइवल मोड में भी अपने आप को स्थापित करके रखना होगा। और we need to ensure at all the time that customers are happy with us। कुछ ऐसे स्टार्टअप है जो आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि हेल्थ केयर या हेल्थ सर्विसेज के साथ जुड़े हुए स्टार्टअप, कुछ ऐसे रिलैक्सेशन बेवरेजेस ऑफर करने वाले स्टार्टअप, कुछ ऐसे सोशल गेमिंग या ट्रेनिंग लर्निंग स्किल्स इम्पार्ट करने के लिए इंटरैक्टिव सॉल्यूशन देने वाले स्टार्टअप। इंटरनेट और ऑनलाइन का जमाना आने वाले समय में बढ़ेगा तो UI UX सॉल्यूशन प्रोवाइडर, डोमेस्टिक ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर, ऑनलाइन ऑक्शंस या कुछ ऑटोमेशन या स्मार्ट सॉल्यूशन देने वाले स्टार्टअप के लिए बेहतरीन मौका रहेगा। और ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक फूड, रिन्यूएबल सर्विसेज, फूड प्रोसेसिंग, ये सारे क्षेत्रों में आने वाले 10 साल में बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। They are going to transform this sector। और इस ट्रांसफॉर्मेशन की के लिए हमें क्या करना है? We need to distinguish what we have and how we can reach to the goal which we are deciding। और ये करने के लिए हमारी इनहेरेंट स्किल्स को हमें तैयार करना होगा। कोई भी आइडिया चाहे कितना भी हो, बड़ा हो छोटा हो, लेकिन उसकी शुरुआत हमेशा छोटी रहती। कोई भी बिजनेसमैन आज के जो टॉप फॉर्च्यून 500 में है उनकी गणना कर ले तो उन्होंने इस चीज का सही इस्तेमाल किया है। 1970 के दशक में जो भी फॉर्च्यून 500 में कंपनियां थी, सारे ही 1983-85 आते हुए 1983-85 आते आते सारी फॉर्च्यून 500 कंपनियां अपना स्थान फॉर्च्यून 500 लिस्ट में से गंवा चुकी थी। वो एक ऐसा एरा था जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर पहुंचने जा रही थी और इन फॉर्च्यून 500 कंपनियों ने उस टेक्नोलॉजी इनोवेशन के जमाने में उस टेक्निक को अपनाने में थोड़ी देरी कर दी। कस्टमर बेस पूरा शिफ्ट होके नई कंपनियों की ओर चला गया। सेम वे
अराउंड 2000 इंटरनेट की क्रांति हुई। कई ऐसे नए फॉर्च्यून 500 प्लेयर्स इमर्ज होके बाहर आए, चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट कहें, गूगल कहें, या अमेज़न कहें, या जो भी ऐसे इंटरनेट से जुड़े हुए व्यापारी हैं। ई कॉमर्स, इंटरनेट के जरिए, पहले तो इंटरनेट के जरिए हम इस तरह से एक दूसरों के साथ संवाद कर पाएंगे, ये भी शायद 2000 के दशक में किसी ने सोचा नहीं होगा। लेकिन आज ये सारा अनुभव हम कर रहे हैं। सेम वे कई कॉर्पोरेट्स अपनी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के क्षेत्र में बहुत उम्दा उस समय भी कंट्रीब्यूशन कर रहे थे, लेकिन आज फॉर्च्यून 500 में नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी अप्रोचेस एडॉप्ट करने वाली कंपनियों ने स्थान ले लिया है। और 2020 में फिर से वो परिवर्तन होने वाला है, और वो परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होगा जब कोविड-19 के बाद क्या हमारे पास अभी उपलब्ध है और क्या नया हम खोज के समाज के सम्मुख रख सकते हैं। And that will really lead all of us the transformation, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम कहते हैं, और कैसे हम अपने आप को लीडरशिप पोजीशन में स्थापित कर सकते हैं, ये हमें तय करना होगा। हम सब चाहते हैं 21वीं सदी ज्ञान की सदी है, और इस ज्ञान की सदी में हम भारत को टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। लेकिन ये स्थापित विश्व गुरु के रूप में भारत को स्थापित होना होगा तो आज के युवाओं को हमें तैयार रहना होगा, और अपनी तैयारी समाज के लिए करनी होगी। समाज के साथ साथ हम कैसे उनके लिए उपयोगी सॉल्यूशन ऑफर कर सकते हैं, चाहे वो बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे औद्योगिक रूप से, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, चाहे आवास के क्षेत्र में हो, या फिर सोशल सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो। कहीं ना कहीं हमें बदलाव लाना होगा, और बदलाव लाते हुए हम लीडरशिप पोजीशन हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की थी कि यू कैन नॉट चेंज योर फ्यूचर। हम अपना भविष्य बदल नहीं सकते हैं, but we can change our habits and that will surely change the future. हम अपनी आदतों को बदलेंगे तो आने वाला भविष्य भी बदलेगा। इस बात के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम लेता हूँ। आप फेसबुक या सोशल मीडिया में ट्विटर, लिंक्डइन या इंस्टाग्राम के जरिए भी मुझसे जुड़ सकते हैं। उन्नत पंडित मेरा आईडी है, और आप कभी भी कुछ भी विचार अपने प्रस्तुत करना चाहें तो मेरे साथ इस सोशल मीडिया के जरिए आप जुड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच अरुण जी एंड डॉक्टर राजेश कोठारी जी फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय व्यूज। थैंक यू एंड लेट मी अरुण जी बोलिए। सर काफी मैसेज आ रहे हैं, तो कुछ लोग जानना चाह रहे हैं अटल इनोवेशन मिशन के बारे में जो नीति आयोग के द्वारा। अटल इनोवेशन मिशन मूल रूप से 2016 में शुरू हुआ, और 2016 में अंतिम समय में Q4 में हमने पहली योजना के बेनिफिशियरी को पैसा दिया था। आज मोटा मोटा 3.5 साल या उससे थोड़ा एक आध महीना ऊपर हुआ है, लेकिन आज अटल इनोवेशन मिशन समग्र भारत में एक निश्चित रूप से पूरी लेंथ और विड्थ की लद्दाख में से अंडमान निकोबार तक, या द्वारिका कच्छ से लेकर जयरामपुर डिस्ट्रिक्ट जो कि एक्सट्रीम ईस्ट डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश का है, वहां पर स्थापित हुआ है। एंड दिस इज समथिंग विच हैज रियली ऑफर्ड एंटायर कंट्री the real plugins through which each and every student and youth can take part into the innovation building initiative and make an attempt to transform the country, and that will really benefit the country as well.
सर एक और क्वेश्चन है मिस्टर धनपत राज धारीवाल की तरफ से, हाउ टू वैलिडेट द ज्ञान बिफोर इम्प्लीमेंटेशन इन पर्टिकुलर फॉर स्टार्टअप्स? See, that's not a validation. See, one has to particularly think about where exactly problem exists. और यहाँ पर ही हम गलत जा रहे हैं. जो वेस्टर्न में ऑलरेडी अवेलेबल सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन को हम कहीं ना कहीं ज्ञान के स्वरूप में यहाँ वैलिडेट करना चाहते हैं. तो उन्होंने जो अपने हिसाब से खोजा है, उस इनोवेशन को, उस टेक्नोलॉजी को हम भारत के परिप्रेक्ष्य में कैसे स्थापित कर सके. और कई ऐसे एजुकेशन टेक्नोलॉजी में स्टार्टअप रहे जो स्टार्टअप उसके सॉल्यूशन को यहाँ के यूनिवर्सिटी को ऑफर करके वो सॉल्यूशन यहाँ स्थापित करना चाहते हैं. तो इनिशियली शायद पर्सनल कनेक्ट में उनको कुछ बिजनेस भी मिल जाता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाता. So I think it's worth of attempting to understand where the real problem is and how we can address this problem through innovation and technology. And we have to more focus on identifying the root cause for the problem which we want to address. And that will really ensure that we are on a right path of innovating the useful and solution which society is in need. यूनिवर्सिटी में हम बच्चों के साथ मीटिंग करते हैं, काफी अच्छे आइडियाज लोगों के पास. सॉरी, आपका क्वेश्चन सुनाई नहीं दे रहा है. सर जब हम यूनिवर्सिटी में बच्चों के साथ मीटिंग करते हैं तो काफी बच्चों के पास में काफी अच्छे आइडियाज होते हैं. हाँ, लेकिन एक रास्ता पता नहीं होता है कि आइडिया को हम लोग इम्प्लीमेंटेशन की तरफ कैसे लेके जाएं. तो उसमें नहीं, देखिए, रास्ता तो पता नहीं होगा क्योंकि हम शुरू कर रहे हैं. और यहाँ पर ही इंक्यूबेशन सेंटर की भूमिका आती है. इंक्यूबेशन सेंटर बच्चों को सही राह दिखाने में एक महत्वपूर्ण प्लग इन इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में स्थापित हो सकते हैं. चाहे ऐसे स्टार्टअप आने वाले समय में कुछ नया करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ, व्हाट इज द मार्केट नीड, क्या मार्केट में नीड है और क्या ऑफर कर रहे हैं. कई बार कोई ऐसी टेक्नोलॉजी खोज कर लेकर आते हैं जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है एंड मार्केट डू नॉट अप्रिशिएट सच सॉल्यूशन. तो या फिर कुछ कई बार ऐसा प्राइस वेरिएंस होता है कि जो चीज 100 रुपए में उपलब्ध है हम वो 650-700 रुपए में ऑफर कर रहे हैं. तो मार्केट विल नॉट अप्रिशिएट एंड राजेश जी विल वैलिडेट, ही इज हैविंग अ फाइनेंस बैकग्राउंड. सो मार्केट में जो चीज बिकती है उसको मार्केट कॉस्ट रेंज में आना चाहिए. व्हाट न्यू विच वी कैन ऑफर. सो एक अच्छा बिजनेस मॉडल भी तैयार करना होगा और ये सब चीजें तैयार करने में आपको इंक्यूबेशन सेंटर हेल्पफुल बन सकते हैं. और ICFAI यूनिवर्सिटी के साथ जुड़कर आप ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर सर स्पेशली जो यंग बच्चे हैं जो अभी ग्रेजुएशन के अंदर है, जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उनके लिए आपका एक मैसेज, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. सॉरी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पाती है मेरे तक. हेलो, हाँ, एम आई ऑडिबल? या थोड़ा माइक्रोफोन नजदीक रखेंगे तो अच्छा रहेगा. हेलो हेलो. हाँ, या मच बेटर. सर अभी जो बच्चे हमारे यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो यंग बच्चे हैं, उनके लिए कोई मैसेज, हाउ दे कैन कंट्रीब्यूट इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री. सी, आज के समय में कहीं मतलब आने वाले समय में अगर हम टेक्नोलॉजी इनोवेशन के क्षेत्र में कुछ नया करना चाहते हैं तो जो आज आसपास में जहां भी एनवायरनमेंट में चैलेंजेस हैं उसका कैसे समाधान मिल सकता है. और ये समाधान खोजना है तो अपनी आइडिएशन स्किल को
आगे ले जाना होगा। कैसे अभी हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन या रेफरेंसेस अवेलेबल हैं उसका प्रयोग करते हुए कैसे हम नई चीजें बना सकते हैं और क्या समस्याएं आज समाज फेस कर रहा है। जैसे वेंटिलेटर की समस्या थी तो आज के रिसर्चर इनोवेटर्स ने नए वेंटिलेटर खोजे। एक भी इंफॉर्मेशन जो नई नहीं थी, एवरीथिंग वाज इन एग्जिस्टेंस, बट स्टिल वेंटिलेटर के प्राइस 20 से 35 लाख तक थे। आज कोविड-19 ने उन्हें सिखाया कि कैसे यूजफुल इंफॉर्मेशन का प्रयोग कर सकते हैं ताकि कॉस्ट इफेक्टिव वेंटिलेटर बन सके। और फुल्ली ऑटोमेटेड वेंटिलेटर आज 1 से 1.5 लाख की कीमत में ऑलरेडी उपलब्ध है। और इस कोविड-19 महामारी के समय में वो कई ऐसे मरीजों को इसका प्रयोग करने से ठीक भी कर रहे हैं। सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इनोवेशन। नेसेसिटी हमें ढूंढनी होगी कि कहाँ है, क्या है। अपॉर्चुनिटी इज ह्यूज। स्टार्ट referring the literature, identifying the problem area, have a discussion with your mentors, and they will guide you towards identifying the right pathway for your startup and entrepreneurship journey. So I think that's what I feel that is useful for all the startups, students and youth of affiliated to ICFI. Professor Pandit? Yeah. Thanks for your scholarship. I won't say lecture, but I'll say discourse. You have enlightened us. You have shown where we are heading and what shall happen in future. I'd like to say a few words, sir. Allow me to do so, sir. Yeah. You talk about entrepreneurship, innovations, technological. All right, sir. Unfortunately, my observation is, sir, we are sitting at the mouth of a gold mine and looking at someone else to dig out the gold out of the mine on which we are sitting on, sir. Since time immemorial, our country has been in forefront. So far technology is concerned, so far messaging is concerned, so far entrepreneurship is concerned. You remember, sir, it was not the Vasco da Gama who invented India, who discovered India. It was Indian traders who happened to be there, and while returning, he brought Vasco da Gama. What I wish to say is that, sir, this nation has full of talent. This nation has full of innovative ideas. The entire Silicon Valley is dominated by Indian brains only. Clear? So, my simple submission to you is, sir, for example, I often quote one example of Jugaad. Jugaad means make and shift technology. The word Jugaad is quite popular in case when we undertake the rural road trip. We do not have the government buses over there. We do not have the formal transport mechanism, but people have devised number of ways and means to reach one destination to other one. Now, what they need? They have an idea, they have been implementing, and they've been using it. What we need? We need to polish them. We need to package them. We need to put it commercially viable them. And I can tell you, sir, we come from the land which happens to be pioneer in entrepreneurship in the country. We are sitting on the rich, glorious past. Be it Birla, be it Singhania, Sahu, Goenka, Chamdiya, and then Nevatia, you name any top industrialist, Podar, Khemka, they are from this land only. Right? If you take first 20 industrialists, in one form or other, they have their roots in Rajasthan, and that too from this one. So now, you rightly said, with the passage of time, they couldn't keep pace with changing mandate. And therefore, most of them have vanished from the scene. So,
There are three dimensions, sir, which we like to foresee that. Instead of searching out new one, instead of wasting time and energy resources for searching a new one with no certainty of success, why don't we promote and adopt and cultivate the innovation, the practices, good practices which are prevailing and addressing to day-to-day problem and its solutions. Let's take simple example, sir. Government have already spent millions of rupees in water conservations, right? Come to Bikaner, come to desert. People have been conserving water for centuries together. For centuries together. Now, what we need? What we need? We need to foster, promote, protect such kind of practices which have been part of our life. And this is not for the day. Let's take a simple example. Everyone says, eat green vegetable, this vegetable. But you come to Rajasthan. There are, when there is a season, these vegetables are dried up with no technology. Technology means they've got their in-house technology only. I've seen my mother doing so. I've seen my grandmother doing so. And that point of time, there was no support of chemicals to prevent the what I can say, the rats and the ant eating this one. But they were able to save it for years together. So a great idea is good. Important is, can we focus on more of local people, local market, local technology, so that they don't become the victim of market forces. What can we produce if we have technology? So I give another example. There is a place, and the place is called Falna. Falna is a place which is on, you can say, from Delhi, Ahmedabad, broad gauge, sir, is just before Mount Abu. Right, sir? Now, in Falna, what happens, sir? They have huge umbrella manufacturing setup. Right? Now, that point of time, I'm talking about, I visited, I was connected with SISI. So we visited that industry and we went for the capacity building over there. So to my surprise and shock, I was learned there were almost 150 units making umbrella. Now, umbrella may not find a place in our common life, but if you are in Bombay, umbrella is as good as you carrying the other official documents with you. All right, sir. Now, surprisingly, sir, not a single unit failed. And when I inquired why it is so that not a single unit is failed and you're making umbrella where we don't have even the iron rods produced nearby only. Everything you're importing from outside or getting outside. Clear? The true logic which I've generated was, yes, if you have the concept of ownership in the enterprise that you have set up, you will not allow it to get failed. And all those 130 units which I started in the 85-86, they didn't prefer to take support. They didn't prefer to take support from any bank or financial institution, and they were running successfully. Why? Because they feel the pinch of losing money. If I borrow money from someone and I know that if I don't pay, nothing is going to happen to me. So that honest will not come. So they own the entrepreneurship, they own the responsibility. And number two, what I personally feel is that, sir, let's not talk too big to achieve. Let's talk small. Somebody rightly said, small is beautiful. I believe India is a country where one product cannot be sold across. In Rajasthan, on every 4 miles, there is change in language, culture, food habits. So what we need to understand, sir, in your language, if I say, what is startup we are going to do, unless you localize it, you'll not have the mass market. India is a country, sir, with my little knowledge, 10 startups set up, 9 out of them get failed in very second year, only 1 survive. Because in Josh, we lose the Hosh. And by the time Hosh comes, Josh comes. So we will, sir, with your expertise and the good office, surely Iqbal University would like to venture out into Atal Innovation Center, so that let's try to cultivate habit of thinking independent, thinking discrete, thinking, what I can say in common language, out of box, and I say in the box. How can I make things better? How my life can be better with the daily usage and practices one. I cannot allow a complete blood transfusion in me, right? I want my blood get purified if I donate blood regularly. That kind of thing we are looking at you, sir. And I think, sir, you have really enlightened us. The words and the phrases that you use it, the context that you have simplified, suggest how depth
you enjoy, how much depth you enjoy in your wisdom, in your thought, in your lecture. Sir, these are my few words, and I feel enlightened, sir. Surely we like to work together to understand what is this Atal Incubation Center and how can we make it. You rightly said, good for society is good for individual. Still, this concept is valid in India. Unlike in USA, good for individual is valid for good for society. Still, we are driven by society. I would like to be known. अच्छा आप कोठारी साहब के बच्चे हो? मतलब I'm not known as Rajesh Kothari. I'm known by my father's legacy. Sir, these are few words, and I think I'll request you when you happen to be in Jaipur, आप आइए, बात करेंगे, समाज बनेगा, हम लोग साथ चलेंगे, sir. धन्यवाद, नमस्कार. Definitely, I will visit your university, and it will be useful for both the side. I will also gain, and I will also contribute. That is the example which you have quoted and which I have seen as a product. एक व्हाट्सएप पर शुरू के समय में जब जनता कर्फ्यू की बात आई थी, तब एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें गांव में एक देहात का व्यक्ति 2 बॉटल को लगाकर एक में से साबुन का पानी निकाल रहा है और दूसरे से साफ पानी से वो हाथ धो रहा है, और वो वीडियो काफी वायरल हुआ. जी सर. अभी कुछ समय पहले मैंने एक ऐसा जो सैनिटाइजर की बोतल रहती है, सैनिटाइजर की बोतल को ऊपर से हमें प्रेस करना पड़ता है. राइट सर. तो एक बंदे ने एक कमर्शियल प्रोडक्ट यहाँ पर ही दिल्ली में मैंने देखा जिसमें पैडल से पुश करे तो मैकेनिकली ऊपर से बोतल का कैप है वो प्रेस होकर हाथ में सैनिटाइजर मिलता है. तो ये चीज पहले उपलब्ध नहीं थी. कई ऐसे we have this in our university. This is something which people have again tried to commercialize. बहुत छोटी चीज है लेकिन हाँ commercialize की और आज लोग उपयोग भी कर रहे हैं. They don't want to even touch the sanitizer bottle. So how from pressing the food they can get the sanitizer from outside. Right. And by using the foot, they can get entry in and out. That's what. So, बहुत छोटी चीज है, but just this is something which is useful. Sir. Right, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. Thank you.